Friends, in previous part we have studied about the pattern of biodiversity. In this part we will study about the importance of biodiversity to the ecosystem and laws of biodiversity. So first one is importance of biodiversity to the ecosystem. Means huge number of biodiversity, number of organisms which affect the ecosystem. तो यही है the increased number of species in community. Species in community. किसी भी कम्युनिटी में स्पीसीज इंक्रीज होती हैं रियली मैटर टू फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. रियली मैटर टू द फंक्शन ऑफ ecosystem because the rich biodiversity is important for stability. यानी इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है नंबर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म होने के कारण से, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होने के कारण से. प्रोडक्टिविटी, resilient or are the pathway of healthy ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होती हैं तो ये नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होने के कारण से इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए. मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज यदि इंक्रीज हो जाते हैं तो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. एंड रेजिस्टेंस मींस इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंस पावर. तो जिसके कारण से इकोसिस्टम में सराउंडिंग एरिया में जो भी कंडीशन होती है मैन के कारण से, डिस्टर्बेंस के कारण से, तो उनके कारण से भी या अदर स्पीसीज के किसी इफेक्ट के कारण से जो रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड होती है, ये किसी भी इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए पाथवे है. उन्हीं में से नंबर 1 है स्टेबिलिटी. The number of biodiversity make the stable to ecosystem because the rich biodiversity provide more stability to ecosystem than the less biodiversity और less species भी कह सकते हैं. किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हायर नंबर ऑफ स्पीसीज है वो मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है देन द लेस स्पीसीज. किस कारण से? नंबर 1 इसमें फीचर्स हैं. क्यों? क्योंकि हायर प्रोडक्टिविटी होने, पहली बात तो हायर डाइवर्सिटी होने का से प्रोडक्टिविटी की भी ज्यादा होती है. रेजिस्टेंस पावर इसमें एलियन स्पीसीज या अदर स्पीसीज आ जाती हैं तो उनसे भी अपने रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है. एंड लेस नंबर ऑफ वेरिएशन कैन बी शोन इन द हायर बायोसिटी. There should be less
number of variation found in rich biodiversity. Rich biodiversity. Number 2, it provide the it क्या higher biodiversity. It provides the resilience power or resistance power. Resistance power to the organisms from natural or man-made disturbance. Man-made disturbance. And third one, it provides the resilience power when they are invention from the alien species. It provides the resilience power. Resilience power invention from alien species. इसके कारण से स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। इसी चीज में स्टेबिलिटी में शो करने के लिए एक अदर इकोलॉजिस्ट जिसका नाम था डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन डेविड टिलमैन द लॉन्ग टर्म ecosystem experiment of outdoor plotting by David Tillman explained that if the number of plots मतलब species हायर है किसी संख्या के किसी एरिया के अंदर, that show also according to it less variation every year to year. The higher number of plots, और यहाँ प्लॉट्स जिसको शो कर रहा है वो स्पीसीज को, शो द less variation year to year in productivity. Number second, the diverse number of species increase the productivity. The diverse number of species increase the productivity. This two laws was explained by David Tillman. He explained with the higher number of plots. First, this is the stability. और दूसरा क्या है, प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करती है, और इसका सेकंड पार्ट करेंगे हेल्थी इकोसिस्टम, और कह सकते हैं इकोसिस्टम हेल्थ. इकोसिस्टम हेल्थ सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट था स्टेबिलिटी, सेकंड पार्ट इकोसिस्टम हेल्थ. In our ecosystem, there is a huge variety of organisms. If some species in this huge variety may extinct, that should mean there is no effect can be seen in initially में मतलब किसी भी इकोसिस्टम से यदि थोड़ी सी स्पीसीज लुप्त हो जाएं तो इकोसिस्टम पे इनिशियली में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट अकॉर्डिंग टू टाइम
period to period, so there should be the bad effect fall on the ecosystem. If the biodiversity lose the some species, then there should no directly affect fall on our ecosystem. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है और कुछ स्पीशीज यदि लुप्त हो जाते हैं हमें पता नहीं लगता. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं देयर इज द लेस इफेक्ट में फॉल, थोड़ा सा इफेक्ट फॉल होता है, मतलब इफेक्ट होता है थोड़ा सा इफेक्ट में. तो किस प्रकार से? फॉर एग्जांपल इफ द some species of tree frogs extinct in Western Ghat, कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो ट्री फ्रॉग्स है उनकी प्रजाति कुछ लुप्त हो जाएंगे और द नंबर ऑफ ants reduces from 20,000 to 15,000. यानी नंबर ऑफ आंट्स की स्पीसीज कितनी है? 20,000, और 20,000 से 15,000 रह जाए तो स्टार्टिंग में देयर इज नो बैड इफेक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम. देन देयर इज नो बैड इफेक्ट fall on our ecosystem initially. स्टार्टिंग में इसमें कोई विशेष प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, बट ड्यू टू दिस लॉस कैन बी ऑकर्ड पीरियड टू पीरियड, जिसके कारण से इकोसिस्टम अफेक्ट, क्योंकि यही बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को नहीं ह्यूमन रेस को भी बनाए रखती है. बट due to continued loss, this biodiversity may cause the loss of biodiversity, loss of ecosystem, loss of biodiversity or health of ecosystem. The biodiversity not only keep the ecosystem healthy, but also maintain the human race. ह्यूमन की जो ग्रोथ की डेवलपमेंट की रेस है इसी प्रकार से बनाए रखती है. इसी चीज को एक अदर इकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट देके शो किया, उसका नाम था पॉल इहरलिच. दिस रिडक्शन of species of number of species was explained by Paul Ehrlich. He said that इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन को आप क्या मान सकते हैं? एक इकोसिस्टम मान सकते हैं.
इन एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन क्या है, इकोसिस्टम, देयर आर मेनी पार्ट्स attached with thousands of राइवट, राइवट बोले तो नेल्स, और ये नेल क्या है, स्पीसीज है। मतलब एरोप्लेन को एक क्या मान लिया, इकोसिस्टम, और उस एरोप्लेन के अदर जो डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से अटैच्ड हैं, किसके द्वारा, राइवर्ट्स के द्वारा। राइवर्ट्स को क्या कहते हैं, नेल, नेल मतलब स्पीसीज से। इफ एवरी पैसेंजर traveling in aeroplane popping का मतलब निकाल लेना, popping the rivets and take home। समझ रहे हैं, एक इकोसिस्टम एरोप्लेन है, एरोप्लेन को इकोसिस्टम बनाया, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स एक दूसरे अटैच्ड हैं, राइवर्ट्स यानी नेल से अटैच है, और नेल या इसमें क्या है, स्पीसीज है। और एवरी टाइम जितने भी पैसेंजर उस प्लेन के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं, तो वो हर समय एक एक राइवर्ट निकाल के ले जाते हैं अपने घर पे। तो स्टार्टिंग में देयर इज नो बैड इफेक्ट फॉल ऑन द फ्लाइट टेक होम, देन initially there is no bad effect fall on aeroplane। स्टार्टिंग में कोई, लेकिन कंटिन्यू इस प्रकार ले जाते रहें तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एरोप्लेन डेंजरसली वीक हो जाएगा। बट it may be period of over period of time, over period of time। तो स्टार्टिंग में एक एक राइवेट निकाला, जैसे सीट से निकाले, और उसमें स्टार्टिंग में देयर इज नो बैड इफेक्ट फॉल ऑन द फ्लाइट ऑफ द एरोप्लेन। लेकिन धीरे धीरे इसी प्रकार से हर बार पैसेंजर निकालते रहे तो एक ऐसा समय आएगा कि एरोप्लेन वीक हो जाए, दैट इज नॉट एबल टू फ्लाई, and it becomes dangerously। ये हुआ स्टार्टिंग से। लेकिन कई बार क्या होता है, की फैक्टर जो बायोडाइवर्सिटी का जो मेन की फैक्टर है, यदि उसके ऊपर स्टार्टिंग में ही अफेक्ट कर दिया जाए, कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। मतलब इन्होंने, पैसेंजर ने उसकी राइवर्ट्स निकालना शुरू किया अंदर से। यदि उसकी की फैक्टर बोले तो विंग से, एरोप्लेन की जो विंग्स है उसी के राइवर्ट निकाल लेते, तो जो हमारा इकोसिस्टम था, एरोप्लेन था, वो स्टार्टिंग में ही डैमेज हो जाता। बट ड्यू टू अफेक्ट ऑन द की फैक्टर स्मॉल, यानी की फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा भी यदि इफेक्ट पड़ जाता है, इट में आल्सो काज बैड इफेक्ट कह सकते हैं, डेंजर्स कह सकते हैं। बैड इफेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी। कैसे? सपोज the passengers remove the rivets of wings of aeroplane, then the wings, rivet of wings, this is the key factor। एरोप्लेन के लिए की फैक्टर का काम कौन है? राइवर्ट्स ऑफ विंग्स, दिस इज द की स्पीसीज भी कह सकते हैं।
स्पीसीज तो काफी हैं, राइवर्स तो सारी काफी थी, इसको स्पीसीज कहा, एरोप्लेन भी कहा। एरोप्लेन के अंदर जो विंग्स की जो राइवर्स हैं, दिस इज द की स्पीसीज, देन it would extinct the biodiversity, यानी ये एरोप्लेन को ही एक्सटिंक्ट खत्म कर देता, डैमेज कर देता। दिस एक्सपेरिमेंट वाज प्रपोज्ड बाय पॉल इहरलिच। क्लियर?